بہت پرانی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام عمیر تھا۔ وہ بہت زیادہ کنجوس اور بخیل انسان تھا۔ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا تو سب کچھ تھا، لیکن وہ اپنی ذات پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی کنجوسی کے قصے پورے شہر میں مشہور تھے، کیونکہ وہ ضرورت کی چیزیں بھی نہیں خریدتا تھا۔ عمیر اتنا بڑا کنجوس تھا کہ وہ ایک زیتون کے دانے کو 2 راتوں تک چلاتا تھا۔ پہلی رات وہ آدھے زیتون کے ساتھ روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیتا، دوسری رات وہ باقی بچا ہوا آدھا زیتون تھوڑے سے پیاز اور سرکے کے ساتھ کھا کر گزارا کرتا تھا۔ وہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتا۔ عمیر دن بھر بازار میں لوگوں کا بھاری بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھا کر مزدوری کرتا تھا۔ اسے اس کام سے جو بھی پیسے ملتے وہ انہیں ایک مٹی کے بڑے سے برتن میں چھپا کر رکھتا تھا۔ اسے ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا کہ کہیں کوئی چور اس کے پیسے چوری نہ کر لے، اس لیے وہ اس بڑے سے برتن کو زمین میں ہی چھپا کر رکھتا تھا۔ وہ ہر روز رات کے اندھیرے میں اپنا وہ برتن نکالتا اور ان میں جمع کیے ہوئے چاندی کے سکے گنتا رہتا۔ سکوں کی آواز سن کر اسے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اس کا دل کبھی پیسوں سے نہیں بھرتا تھا اور وہ ہر وقت مزید پیسے کمانے اور انہیں جمع کرنے کی فکر میں ہی لگا رہتا تھا۔ ایک دن عمیر کے چاچا کا انتقال ہو گیا اور وراثت میں اسے 4 صحت مند اونٹ ملے۔ کوئی دوسرا ہوتا تو وہ بہت خوش ہوتا، لیکن عمیر کا لالچ اور بڑھتا گیا۔ اسے لگا کہ 4 اونٹ تو بہت کم ہیں اور اسے ایک اور اونٹ خریدنا چاہیے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو مزید بڑا کر سکے۔ عمیر نے اپنا چھپایا ہوا سارا مال نکالا اور اس سے 5واں اونٹ خرید لیا۔ ان دنوں تاجر اپنے سامان کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانے کے لیے اونٹ کرائے پر لیتے تھے۔ جب سفر مکمل ہوتا تو اونٹوں کے مالکوں کو ان کی محنت کی اجرت یا کرایہ دے دیا جاتا تھا۔ عمیر اپنے 5ویں اونٹ کے ساتھ بہت محنت کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ سامان بہت جلدی منزل تک پہنچ جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ چکر لگا کر خوب پیسے کما سکے۔ اس چکر میں وہ خود بھی نہیں سوتا تھا اور اپنے بے زبان جانوروں کو بھی آرام نہیں کرنے دیتا تھا۔ اس کے اونٹ بھوک اور بہت زیادہ تھکان کی وجہ سے کمزور ہونے لگے تھے۔ وہ سارا دن چلتے رہتے اور عمیر انہیں بہت کم چارہ دیتا تھا تاکہ اس سے بھی اس کے پیسے بچ جائے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، تاجروں میں عمیر کی پہچان بڑھنے لگی۔ وہ اپنا سارا وقت ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنے میں ہی گزارتا تھا۔ رات کو وہ اپنے اونٹوں کے پاس گھاس کے ڈھیر پر ہی سو جاتا تھا۔ جب اس کے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے تو اس نے 6واں اونٹ خرید لیا۔ اس طرح وہ پیسے بچاتا رہا اور اونٹ پر اونٹ خریدتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاس 80 اونٹ ہو گئے۔ عمیر کے پاس اب 80 اونٹ ہو چکے تھے اور اللہ نے اسے بہت بڑی دولت سے نوازا تھا۔ تاہم اتنی زیادہ دولت آنے کے باوجود عمیر کی عادتیں بالکل نہیں بدلیں۔ وہ اب بھی وہی پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا اور وہی روکھا سوکھا کھانا کھاتا۔ عمیر کا خاندان اور اس کے دوست اسے اکثر سمجھاتے تھے کہ اللہ نے اسے اتنا مال دیا ہے، اب اسے اپنی زندگی بدلنی چاہیے۔ وہ اسے مشورہ دیتے کہ وہ اپنے لیے اچھے کپڑے خریدے، اچھا کھانا کھائے اور ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے اپنا گھر بسائے، لیکن عمیر ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا۔ عمیر کا لالچ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اتنا بخیل تھا کہ اتنے سارے اونٹوں کو سنبھالنے اور سفر پر لے جانے کے لیے وہ کسی مزدور کو بھی کام پر نہیں رکھتا تھا۔ سفر کے دوران جب کبھی اسے بھوک لگتی تو اپنا کھانا نکالنے کے بجائے ان تاجروں کی بوریوں کو کھول لیتا جن کا سامان وہ پہنچا رہا ہوتا تھا۔ وہ چپکے سے ان کا کھانا نکال کر کھا لیتا تھا تاکہ اس سے اس کا اپنا خرچ بچ سکے۔ ایک دن عمیر گندم اور کھجوروں کی بوریاں لادے صحرا سے گزر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت اسے سخت بھوک لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور جب اطمینان ہو گیا کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تو اس نے ایک بوری کھولی، اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق گندم نکالی، پھر بوری کو احتیاط سے دوبارہ بند کر دیا۔ عمیر نے ایک پتھر سے گندم کو پیسا، اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر آٹا گوندھ لیا۔ اس نے آگ جلائی اور اس پر روٹی پکائی۔ وہ بڑے مزے سے چوری کی گندم کی روٹی اور کھجوریں کھا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے آدمی پر پڑی جو اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس بوڑھے آدمی کی داڑھی سفید تھی اور وہ بہت تھکا ہوا اور بھوکا لگ رہا تھا۔ عمیر نے اسے دیکھ کر منہ موڑ لیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے اس اجنبی کو کھانے میں شریک کرنا پڑے۔ اس نے اپنی پیٹھ بوڑھے کی طرف کر لی
ताकि वो इसे खाते हुए ना देख सके। लेकिन वो बूढ़ा आदमी हार मानने वाला नहीं था। वो घूम कर उमेर के सामने आ गया और बड़े अदब से कहा, अस्सलाम वालेकुम। उमेर ने बहुत बोझल दिल से सलाम का जवाब दिया, लेकिन उसे खाने की दावत नहीं दी। इसे डर था कि ये बूढ़ा इसका खाना खत्म कर देगा। बूढ़ा आदमी वहीं बैठ गया और अपना हाथ खाने की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मेहमान की इज्जत करना फर्ज है। उमेर को गुस्सा आ गया और वो दिल ही दिल में सोचने लगा, मैंने इतनी मेहनत से खाना तैयार किया है और ये बूढ़ा मुफ्त में खाने आ गया है। इसके चेहरे पर नागवारी साफ नजर आ रही थी। बूढ़े ने उमेर की आंखों में गुस्सा देख लिया और मुस्कुरा कर कहा, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, तुम्हारे इन ऊंटों की क्या हैसियत है। अपने दिल में सखावत पैदा करो, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमतों से और ज्यादा देगा। उमेर ने जवाब दिया, तुम कौन होते हो मुझे नसीहत करने वाले। बूढ़ा आदमी उमेर की बदतमीजी पर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि पुरसुकून अंदाज में हंसा और कहने लगा, ए नौजवान, अगर तुम ये जानते कि मेरे पास कितना रिज़्क है तो तुम्हारा सर चकरा जाता। उमेर ने हैरत से उसे देखा, क्योंकि उसके पास तो एक छोटी सी बकरी भी नहीं थी। जब बूढ़े ने खाना खत्म कर लिया तो उसने अपने हाथ साफ किए और कहा, अब हमारे दरमियान नमक और पानी का रिश्ता बन गया है। मैं तुम्हारी इस छोटी सी मेहरबानी का बदला देना चाहता हूँ और तुम्हें एक ऐसे खजाने तक ले जाना चाहता हूँ जिसका इल्म मेरे सिवा किसी को नहीं। उमेर ने हैरत और तमस्खुर से पूछा, तुम मुझे खजाना दिखाओगे? बूढ़े ने यकीन से जवाब दिया, हाँ मैं ही, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है, सोने से लदी हुई एक बोरी या फिर तुम्हारे ये 80 ऊंट। उमेर के अंदर के लालची इंसान ने फौरन जवाब दिया, जाहिर है वो ऊंट जिस पर सोना लदा हो। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, फिर मेरे पीछे आओ। बूढ़ा चलते चलते उमेर को नसीहत करने लगा कि अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो जिसने तुम्हें पहले ही इतना दिया हुआ है। उमेर बूढ़े के पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि वो एक सुनसान जगह पहुंच गए जहाँ पुराने जमाने के खंडरात और सतून मौजूद थे। उमेर ने चारों तरफ देखकर कहा, यहाँ तो सिर्फ उल्लू बोल रहे हैं, खजाना कहाँ है? बूढ़े ने इसे खामोश रहने का इशारा किया। बूढ़े ने उमेर से कहा कि वो लकड़ियां जमा करे। जब लकड़ियां जमा हो गईं, तो उसने आग जलाई और अपनी कमर से बंधे एक छोटे से थैले में से कुछ खास खुशबू निकालकर आग में डाल दी। फिर वो कुछ अजीब से कलमात पढ़ने लगा। अचानक एक जोरदार आवाज आई और जमीन फट गई, जिसके नीचे से एक रास्ता जाहिर हुआ। बूढ़े ने कहा, इस गड्ढे के दरमियान में जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें वहां क्या नजर आता है। उमेर डरते डरते नीचे उतरा। जब उमेर गहराई तक पहुंचा तो उसने लकड़ी जलाकर रोशनी की। इसके सामने जो मंजर था उसे देखकर वो दंग रह गया। वहां सोने के ढेर, हीरे, जवाहरात और याकूत से जड़ी तलवारें पड़ी थी। इसकी आंखें चमकने लगी। वहां इतनी ज्यादा चीजें थी कि वो गिन भी नहीं सकता था। सोने की प्लेटें, चांदी के प्याले और कीमती आईने हर तरफ बिखरे हुए पड़े थे। वो दीवानों की तरह कभी एक चीज को पकड़ता और कभी दूसरी चीज को। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। बूढ़ा आदमी आवाज देने लगा, उमेर जल्दी करो, हमें ऊंट लादने हैं वरना ये रास्ता बंद हो जाएगा। और मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे ऊंटों पर जो ताजरों का आटा और खजूरें हैं, इनका क्या करना है? उमेर ने बेरहमी से उसे कहा, इन्हें सहरा में फेंक दो। उमेर और बूढ़े शेख ने मिलकर बोरियां भरना और उन्हें बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब 2 ऊंटों का बोझ पूरा हो गया तो उमेर के दिल में एक बुरा ख्याल आया। उसने सोचा कि हमारा माहिदा तो 1 ऊंट का था, लेकिन अब मेरे पास 2 ऊंट सोने से लदे हुए हैं, क्यों ना मैं इन्हें लेकर भाग जाऊं। वो वहां से निकलने ही वाला था कि इसे याद आया, ये बूढ़ा कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि कोई खास जादू जानता है। इसे डर लगने लगा कि कहीं वो इसे ढूंढकर बदला ना ले ले। इसी खौफ की वजह से वो वापस घड़े की तरफ मुड़ आया ताकि बाकी ऊंट भी लाद सके। कई घंटों की सख्त मेहनत के बाद दोनों आदमियों ने 79 ऊंटों पर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात लाद दिए। अब सिर्फ 1 ऊंट बाकी बचा था जिस पर सामान लादना बाकी था। उमेर ने अपनी जेबें तक भी सोने से भर ली और एक छोटी बोरी अपनी पीठ पर लाद दी। जब वो बाहर निकलने वाले ही थे, उमेर ने देखा कि शेख ने एक कोने से चांदी की एक छोटी सी डिबिया उठाई और उसे अपनी जेब में डाल दिया। उमेर को तजस्सुस हुआ कि इस डिबिया में क्या होगा, लेकिन इस वक्त इसे बाहर निकलने की जल्दी थी। जैसे ही वो दोनों बाहर निकलने के लिए ढालवान के दरमियान पहुंचे, घड़े का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा।
शेख ने ऊंची आवाज में चिल्ला कर कहा, उमेर जल्दी करो वरना तुम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। अपनी जेबें खाली कर दो ताकि तुम्हारा वजन कम हो सके। लेकिन लालची उमेर ने इनकी बातों पर कान नहीं धरा। वो भारी वजन के साथ किसी तरह घसीटता हुआ बाहर निकलने लगा। जैसे ही इसका कदम बाहर पड़ा, जमीन का वो रास्ता एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। शेख ने कहा, मैंने तुम्हें लालच से रोका था, अगर एक पल की भी देर हो जाती तो तुम वहीं दफन हो जाते। बाहर निकलते ही उमेर ने अपने ऊंट की नकील थामी और आगे बढ़ने लगा, लेकिन इसका जहन अभी भी तकसीम पर अटका हुआ था। इसने सोचा, ये तकसीम इंसाफ पर मबनी नहीं है। ये बूढ़ा अकेला 79 ऊंट क्यों ले जाए जबकि मुझे सिर्फ एक मिला है। इसने तो सिर्फ जादू किया था, मेहनत तो मैंने की है। उमेर ने बूढ़े को रोका और कहा, मैंने बोरियां उठाने में बहुत मेहनत की है, मुझे एक और ऊंट मिलना चाहिए। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, तुम एक और ऊंट ले लो। लेकिन उमेर का दिल अभी भी नहीं भरा था। इसने कहा, मेरी मेहनत तो 10 ऊंटों के बराबर है। बूढ़े ने फिर नरमी से जवाब दिया, ये 10 ऊंट भी तुम्हारे हुए। बूढ़ा थोड़ा आगे बढ़ा ही था तो उमेर ने इसे फिर पुकारा और कहा, बेहतर ये है कि हम ऊंट आधे आधे बांट लें, 40 तुम्हारे और 40 मेरे, क्या ख्याल है। बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे कोई एतराज नहीं। उमेर की हिम्मत बढ़ गई और उसने आखिर में कहा, शेख साहब, आपकी उम्र तो अब ज्यादा हो गई है, आप इतनी दौलत का क्या करेंगे। बेहतर ये है कि आप तमाम ऊंट मुझे दे दें और खुद इबादत में वक्त गुजारें। बूढ़े ने सोचा और कहा, तुम ठीक कहते हो, ये माल गुनाह की तरफ ले जाते हैं, तुम सब ले जाओ। अभी वो चंद कदम और आगे बढ़े थे कि उमेर ने फिर बूढ़े से कहा, मुझे वो छोटी डिबिया भी चाहिए जो आपने अपनी जेब में रखी थी। बूढ़ा ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, सुभान अल्लाह, तुम्हारे पास अरब और फारस के बादशाहों से भी ज्यादा सोना है, फिर भी तुम इस छोटी सी डिबिया के पीछे पड़े हो। उमेर के दिल में शक बैठ गया था। इसने सोचा, यकीनन इस डिब्बे में सोने से भी ज्यादा कीमती कोई चीज है, इसलिए ये बूढ़ा उसे मुझे नहीं देना चाहता। इसने गुस्से से कहा, खुदा की कसम, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे ये डिबिया नहीं देते और ये नहीं बताते कि इसके अंदर क्या है। बूढ़े ने गहरी सांस ली और अपनी जेब से डिबिया निकाली और उमेर के हाथों में देते हुए कहा, ठीक है, ये लो, इस डिबिया में एक खास मरहम है जिसे अगर तुम अपनी एक आंख पर लगाओगे तो तुम्हें जमीन के नीचे छुपे हुए तमाम खजाने नजर आने लगेंगे। उमेर ने बेसब्री से डिबिया खोली और मरहम अपनी दाहिनी आंख पर लगा लिया। जैसे ही इसने आंख खोली, उसे अपने पैरों के नीचे जमीन की तहों में छुपा हुआ सोना नजर आने लगा। इसे हर तरफ सोने के घड़े, तलवारें और शाही संदूक नजर आ रहे थे। उमेर खुशी से झूम उठा और चिल्लाने लगा, अब दुनिया के तमाम खजाने और सहराओं में दफन राज मेरे हैं। लेकिन इसका लालच अभी भी खत्म नहीं हो रहा था। इसने बूढ़े से पूछा, अगर मैं ये मरहम अपनी दूसरी आंख पर भी लगा लूं तो क्या होगा। बूढ़े शेख का चेहरा संजीदा हो गया और उन्होंने उसे खबरदार करते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकता हूँ। अगर तुमने ये मरहम अपनी दूसरी आंख पर लगाया तो तुम अंधे हो जाओगे। अब इसके पीछे क्या राज है वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। उमेर मन ही मन सोचने लगा, ये बूढ़ा मुझे डरा रहा है ताकि मैं वो अजीम तरीन राज ना देख सकूं जो उसने शायद अपने लिए रखा होगा। इसने बूढ़े की बात को नजरअंदाज करते हुए मरहम का एक बड़ा सा हिस्सा अपनी बाइनी आंख पर मल लिया। जैसे ही इसने बाइनी आंख खोली, इसे खजाना तो क्या कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ खूब अंधेरा छा गया। उमेर ने अपनी आंखें बार बार मली, लेकिन इसे सिर्फ काली तारीकी ही नजर आ रही थी। वो बिल्कुल अंधा हो चुका था। उमेर चीख कर कहने लगा, शेख साहब, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरा सोना कहाँ है, मेरी बीनाई वापस ले आए, मैं अपना सब कुछ आपको दे दूंगा। बूढ़े ने अफसोस से कहा, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम अंधे हो जाओगे, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये तुम्हारी लालच की सजा है। बूढ़े ने खामोशी से तमाम ऊंटों की नकील थामी और वहां से रुखसत हो गए। सहरा की खामोशी में ऊंटों की चलने की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई और उमेर वहीं अकेला पड़ा रह गया। एक ऐसा आदमी जिसके पास कुछ देर पहले सब कुछ था और अब कुछ भी नहीं था। उमेर की ये कहानी यहीं खत्म होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कनात यानी थोड़े पर राजी होना दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। कनात वो रोशनी है जो कम में भी सुकून अता करती है। जो शख्स
अल्लाह की दी हुई नियामतों पर शुक्र करना नहीं सीखता, वो आखिरकार अपना सब कुछ खो देता है, हत्ता कि वो चीज़ें भी जो इसके हाथ में पहले से मौजूद होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।